السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ چاہتا ہوں ہماری فلم انڈسٹری نئی سوچ لے کر آئے۔ شارٹ فلمز کو دیکھ کر لگا ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی ایک نئی شروعات ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا نیشنل امیچور فلم فیسٹیول کی تقریب سے خطاب۔ کہا، دنیا میں آئیڈیاز کو پذیرائی ملتی ہے، پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں۔ ISPR اور ترجمان پاک فوج کو خراج تحسین پیش۔ ملک کو گزشتہ 2 دہائیوں سے جنگوں کا سامنا رہا ہے۔ انسداد دہشت گردی جنگ تقریباً جیت چکے، آج بھی دہشت گرد ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار کا تقریب سے خطاب۔ کہا، فیسٹیول کے ذریعے پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کیا جائے گا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے شمار قربانیاں دیں، لیکن دنیا نے ہماری قربانیوں کا اعتراف نہیں کیا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا تقریب سے خطاب۔ کہا، آج بھی دنیا ہماری شہادتوں کا تذکرہ نہیں کرتی۔ لاہور جوہر ٹاؤن دھماکے میں اہم پیش رفت۔ زیر حراست ملزم ڈیوڈ کی نشاندہی پر سہولت کار خاتون کرن گرفتار۔ پیٹر پال ڈیوڈ لاہور کے نجی ہوٹل میں اکثر قیام کیا کرتا تھا۔ خاتون کے بھائی نے ہی ڈیوڈ کو گاڑی خریدنے میں مدد کی۔ پولیس نے نجی ہوٹل کی انتظامیہ کا تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ ملازمین سے تفتیش جاری۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے بیرون ملک پاکستانیوں کے حق کی نمائندگی کا نیا فارمولہ پیش کر دیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ میں مخصوص نشستوں کی تجویز دے دی۔ کہا، سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے مطلوبہ قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں پھر گرما گرمی۔ لیگی رہنما رانا تنویر اور وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور میں تلخ کلامی۔ رانا تنویر نے علی امین گنڈا پور پر کشمیر بیچنے کا الزام لگا دیا۔ PP رہنما قادر پٹیل بولے، ان کا ایک ہی کام ہے، پچھلی حکومتوں کو برا کہو۔ وہ ممالک کتنے خوش نصیب تھے جو 1992 کا ورلڈ کپ ہار گئے تھے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان کا قادر پٹیل کے بیان پر سخت رد عمل۔ کہا، 1992 کے ورلڈ کپ کی جس طرح توہین کی گئی وہ قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کفایت شعاری کی مہم شروع کی۔ شرم تو ان کو آنی چاہیے جن کے 10 وزیر اعلیٰ ہاؤس اور 5 وزیر اعظم ہاؤس تھے۔ لیگی رہنما محمد زبیر نے خود سے نواز شریف کی ناراضگی کی تردید کر دی۔ حکومت پر بھی کڑی تنقید۔ کہا، عمران خان کو ہوش آ گیا، ملک چلانا کتنا مشکل ہے۔ وزیر اعظم بتائیں وہ IMF کے دباؤ میں کیوں آئے۔ نئے بجٹ سے مہنگائی بڑھنے کا دعویٰ۔ اپوزیشن کا دکھ سمجھتا ہوں، اکنامی ٹھیک ہو گئی، بجٹ بھی ٹھیک ہو گیا، اپوزیشن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں۔ وزیر توانائی حماد اظہر کا جوابی وار۔ کہا، RLNG کے سودے میں 500 ارب روپے بچائے۔ وفاق ٹھیک کام نہیں کر رہا، نقصان صوبوں کو ہوتا ہے، میں نواز شریف نہیں، سندھ کے حقوق چھیننے نہیں دوں گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گھن گرج۔ کہا، گزشتہ وفاقی بجٹ میں سندھ کا حصہ 707 ارب رکھا گیا، مجھے نہیں لگتا 6 ارب روپے 30 جون کو ملیں گے۔ خان صاحب کہتے ہیں کشکول توڑ دیا، کپتان حکومت نے ماہانہ 1.1 ارب ڈالر قرض لیا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب بھی وفاقی حکومت پر برس پڑے، حکومت سے گندم درآمد کرنے کے فیصلے کی وجہ بھی پوچھ لی۔ رواں مالی سال کے دوران پاکستان نے مجموعی طور پر 12 ارب 13 کروڑ ڈالر سے زائد کا بیرونی قرض لیا۔ چین، امریکہ، جرمنی اور جاپان سے بھی قرض لیا گیا۔ اقتصادی امور ڈویژن نے رپورٹ جاری کر دی۔ سابق صدر آصف زرداری کا لاہور مشن۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں متحرک کرنے کے لیے مخدوم احمد محمود، فیصل صالح حیات، گیلانی کو اہم ٹاسک دے دیا۔ اینٹی نون لیگ الائنس بنانے کا ابتدائی ہوم ورک مکمل۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی اپوزیشن پر شدید تنقید۔ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، ایوان کا تقدس پامال کیا گیا، جو ملوث ہیں ان کو سزا دے کر انکوائری کا جائزہ لیا جائے۔ اسمبلی کے باہر جو ہوا اس پر اپوزیشن جماعتوں کے قائدین معافی مانگیں۔ 5th جنریشن وار کے تحت جھوٹا پروپیگنڈا، سوشل میڈیا کی آڑ میں پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کی منظم مہم کا انکشاف۔ بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ادارے را کی ایک اور سازش بے نقاب۔ پاکستان نے معاملہ مغربی ممالک کے ساتھ اٹھا دیا، ناپاک عزائم کے ثبوت فراہم کر کے گرفتاری کا مطالبہ۔ پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کے فیصلے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا شدید رد عمل۔ کہا، دیکھنا ہوگا فیٹف تکنیکی فارم ہے یا سیاسی، کوئی اسے سیاسی مقصد کے لیے استعمال تو نہیں کر رہا۔ بعض قوتیں چاہتی ہیں پاکستان کے سر پر تلوار لٹکی رہے۔ گزشتہ روز سبی حملے میں شہید لانس نائک ناصر عباس منکیرہ میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں پاک آرمی کے جوانوں، علاقہ معززین سمیت سینکڑوں افراد کی شرکت۔ پاک فوج کے دستے نے شہید کے جسد خاکی کو سلامی پیش کی۔
पेशावर में बाप ही मासूम बच्चों का कातिल निकला। चकमंदी में एक ही घर के 7 अफराद को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुतालिका बीवी और 3 बच्चों समेत तमाम अफराद को गैरत के नाम पर कत्ल करने का एतराफ। खानेवाल में 4 साला मासूम बच्ची दरिंदगी का शिकार। बच्ची की बोरी बंद लाश करीबी खेतों से मिल गई। वाक़े के खिलाफ अवाम का शदीद एहतजाज। ट्रेन रोक दी। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। फैसलाबाद में बच्ची से ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम की असलहा थामे वीडियो मंजरेआम पर आ गई। मुलजिम अकरम रिक्शा ड्राइवर है। अजकेरा में बच्ची को घर पहुंचाने का झांसा देकर अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 36 जिंदगियां निगल गया। 935 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मरीजों की तादाद 9,53,842 तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 1.99% रही। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगान हम मनसब अशरफ गनी को लाल झंडी दिखा दी। व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान अशरफ गनी की बाइडन इंतजामिया को इनखला की रफ्तार सुस्त करने पर कायल करने की कोशिशें नाकाम। तालिबान का अमरीका इनखला की रफ्तार सुस्त करने पर भरपूर जवाब देने का ऐलान। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के इंग्लैंड के शहर डर्बी में डेरे। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे 8 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम कहते हैं कोशिश होगी इंग्लैंड में जीत के तसल्सल को बरकरार रखें और सीरीज जीतें। और हस्पानवी शहर मैड्रिड में सजा रंगारंग ब्राइडल शो। दिलकश मलबूसात जेब तनकीब मॉडल्स की रैंप पर वॉक। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। भारत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। FATF ने पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला कर लिया। FATF के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजलास में कई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। FATF के मुताबिक पाकिस्तान ने 2018 के एक्शन प्लान के 27 में से 26 अहदाफ हासिल कर लिए हैं। फरवरी 2021 से अब तक 3 में से 2 मजीद नुकात पर भी मुकम्मल अमल किया गया। FATF ने पाकिस्तान की जानिब से पेशरफ्त का एतराफ़ भी किया। सदर FATF का कहना है पाकिस्तान बदस्तूर निगरानी में रहेगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी फाइनेंसिंग निज़ाम को मजबूत और मौसर बनाने के लिए बेहतर काम किया। पाकिस्तान की पेशरफ्त पर इत्मीनान है। FATF का वर्चुअल इजलास 21 से 25 जून तक पेरिस में जारी रहा, जिसमें पाकिस्तान के बारे में एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट पर गौर किया गया। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का कहना है नाअहलों ने अदाद-ओ-शुमार का हेर फेर करके देख लिया, हाथ जोड़ लिए, पांव पकड़ लिए, मगर पाकिस्तान तीसरे साल भी पूरी तरह ग्रे लिस्ट में जकड़ा हुआ है। सिलेक्टेड की घर में इज्जत है ना बाहर। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं पाकिस्तान 1 साल में ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में शामिल हो जाएगा। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर की FATF के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग में कहा गया 2018 में पाकिस्तान को मुश्तकिल तरीन एक्शन प्लान दिया गया। मजमूई तौर पर 82 में से 75 सिफारिशात पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया गया, जबकि बकिया पर काम जारी है। हम्माद अजहर ने कहा पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग का एक्शन प्लान मिला। अगले 4 माह में 27 में से बकिया एक नुक्ते पर अमल किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के एक्शन प्लान पर 1 साल के अंदर अमल दरामद करेंगे। वफाकी वजीर ने कहा भारत FATF में बुरी तरह बेनकाब हो चुका है। भारतीय साजिशें अब अपना वजन खोती जा रही हैं। FATF सदर का पाकिस्तानी कारकर्दगी पर एतराफ हमारे काम का सबूत है। पाँव किसने पकड़े उसने खुलेआम ऐलान कर दिया। मरियम सफदर मुंह तकती रह गईं। मरियम सफदर की उनके चचा शहबाज शरीफ भी नहीं सुनते। वजीर मुमलिकत इत्तलाक फर्रुख हबीब का मरियम नवाज को करारा जवाब। कहा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नून लीग ही डलवा कर गई थी। PTI ने मुल्क को ब्लैक लिस्ट होने से बचाया। लाहौर जौहर टाउन धमाके के मुबैना मास्टरमाइंड पीटर पॉल डेविड की मजीद तफसीलात सामने आ गईं। मुलजिम के नाम पर पाकिस्तान में 2 मोबाइल फोन सिमेट रजिस्टर्ड हैं। धमाके में इस्तेमाल गाड़ी को बाबू साबू इंटरचेंज पर पुलिस ने रोककर तलाशी भी ली थी। पुलिस एहलकार ने गफलत बरती या उस वक्त गाड़ी में बारूद नहीं था। तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया गया। लाहौर जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में तेजी से पेशरफ्त। कानून नाफिज करने वाले इदारे कड़ी से कड़ी मिलाने लगे। जराये के मुताबिक धमाके के मुबैना मास्टरमाइंड पीटर पॉल डेविड के नाम पर पाकिस्तान में 2 मोबाइल फोन सिमें रजिस्टर्ड हैं। एक नंबर 19 अप्रैल 2014 जबकि दूसरा 31 मई 2015 को एक्टिव कराया गया। धमाके में इस्तेमाल होने वाली मुबैना गाड़ी की एक और CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस एहलकार ने बाबू साबू इंटरचेंज पर मशकूक गाड़ी को रोका तो ड्राइवर ने एहलकार को गाड़ी की डिग्गी चेक कराई। पुलिस एहलकार की लापरवाही या गाड़ी में बारूद मौजूद न था। सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया।
इससे कबल कराची पुलिस ने महमूदाबाद में पीटर पॉल के घर पर छापा भी मारा था। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक पीटर पॉल बहरीन में स्क्रैप और होटल का कारोबार करता है। इसने अपनी फैमिली को 2010 में बहरीन से पाकिस्तान मुंतकिल किया। मुलजिम 1.5 माह पहले बहरीन से कराची पहुंचा और इस दौरान 3 मरतबा लाहौर का दौरा किया, जहां इसके मुख्तलिफ लोगों से राब्तों के शवाहिद भी मिले। जौहर टाउन धमाके में 9 जख्मी लाहौर के जिना अस्पताल में जेरे इलाज हैं। एक जख्मी खातून की हालत तशवीशनाक है। आर्मी चीफ ने जर्मनी के सरकारी दौरे के दौरान जर्मन अस्करी क़यादत से मुलाकातें की, जिसमें इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिपह सलार ने कहा, पाक फौज जर्मनी के साथ 2 तरफा दिफाई ताउन बढ़ाना चाहती है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जर्मनी के सरकारी दौरे के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस जर्मन से मुलाकात की, जिसमें जर्मनी की वजारत दिफा, सिक्योरिटी और दिफाई पॉलिसी के डायरेक्टर जनरल डायरेक्टर जेलिफ वॉटर भी मौजूद थे। इस मौके पर सिपह सलार ने कहा, पाक फौज 2 तरफा दिफाई ताउन बढ़ाना चाहती है ताकि वो तरबियत और तकनीकी तरक्की में जर्मन महारत से फायदा उठा सके। इस मौके पर जर्मन अस्करी क़यादत ने इलाकाई अमन सलामती और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। मुलाकातों में 2 तरफा दिफाई और सलामती के ताउन को मजीद वसअत देने के अज़म का अदा किया गया। इससे कबल वजारती दिफा पहुंचने पर जर्मन फौजी दस्ते ने आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ ने यादगार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर भी चढ़ाई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद अमरीका से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं। अमरीका की जंग में पाकिस्तान को भारी कीमत चुकाना पड़ी, जबकि अमरीका ने हमेशा पाकिस्तान का ताउन नाकाफी समझा। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि अब अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद पाकिस्तान अमरीका के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश रखता है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्तकबिल में एतमाद और मुश्तरका मफादात पर मुबनी ताल्लुकात होने चाहिए। पाकिस्तान मुस्तकबिल में अमरीका के साथ माशी ताल्लुकात चाहेगा। इमरान खान ने कहा, अमरीका की जंग में पाकिस्तान को 70,000 जानों और $150 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तानियों को लगता है कि वो अमरीका से ताल्लुकात की भारी कीमत अदा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं अमरीका इनखला से पहले अफगानिस्तान का सियासी हल निकले। पाकिस्तान काबुल में अवामी वोट से आने वाली हुकूमत को तस्लीम करेगा। अफगान हुकूमत के साथ मुस्तकिल राब्ते में है। हम नहीं चाहते एक बार फिर लाखों अफगान महाजिरीन पाकिस्तान आ जाएं। पाक भारत ताल्लुकात के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व का नजरिया हमारे और उनकी राह में रुकावट है। उन्होंने तो हल्फ उठाते ही भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की बात की थी। 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया गया। सानवी तालीमी बोर्ड के अलामिया के मुताबिक इम्तिहानी पर्चों का दौरानिया 2 घंटे पर मुश्तमिल होगा। एक एलामिये में कहा गया है कि साइंस ग्रुप के इम्तिहानात सुबह की शिफ्ट में लिए जाएंगे और साइंस ग्रुप के इम्तिहानात सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक होंगे। एलामिये के मुताबिक जर्नल ग्रुप के इम्तिहानात दोपहर की शिफ्ट में लिए जाएंगे और इम्तिहानात दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक होगा। एलामिया में ये भी कहा गया है कि मैट्रिक के इम्तिहानात 5 जुलाई से 27 जुलाई तक लिए जाएंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए और मुस्बत केसेस की शरह 1.99% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 22,188 हो गई और कुल केसेस की तादाद 9,53,842 हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 46,842 टेस्ट किए गए, जिनमें से 935 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 36 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.99% रही। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 22,188 हो चुकी है। कुल केसेस की तादाद 9,53,842 हो चुकी है, जबकि अब तक कोरोना वायरस से 8,98,944 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। शामिल करेंगे बैन अल-क़ौमी खबरें BTV इंटरनेशनल में। भारत में अपनी हरकतों की वजह से झुंड से अलहदा किए जाने वाले गुस्सीले और बदमस्त हाथी ने आज सुबह चहलकदमी के लिए जाने वाले मोमर जोड़े को सूंड में दबोचकर हलाक कर दिया। इस तरह इस हाथी ने 2 माह में 16 अफराद को मौत के घाट उतार दिया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक वस्ती भारत में एक बुदमस्त हाथी इंसानों की जानों के दर पर आ गया है। हाथियों की फितरत के बरअक्स अकेले मटर गश्त करने वाले इस हाथी ने 2 माह के दौरान 16 देहातियों को जान से मार डाला है। भारत के महकमा जंगलात का कहना है, बुदमस्त हाथी की 20 अरकान पर मुश्तमिल टीम मुसलसल निगरानी कर रही है। उम्मीद है हाथी खुद को अच्छा बच्चा साबित करते हुए जल्द ही वापस अपने झुंड में आ मिलेगा। महकमा जंगलात के एक अफसर ने मीडिया को बताया कि इस नर हाथी की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान हो सकती है, जिसने अपने झुंड के 2 नर हाथियों पर जिनसी हमला किया था। हाथी के इस बुरे बर्ताव के बाइस इसे झुंड से निकाल दिया गया था। वाज़ेह रहे कि हाथी अमूमी तौर पर पुरसुकून रहते हैं, ताहम नर हाथियों में मर्द जिनसी हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाने पर बदमस्त हो जाते हैं और बड़ी तबाही मचाते हैं। शामिल करेंगे
कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। मुल्क में गैस का बहरान संगीन हो गया। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने कहा है कि सिंध के साथ पंजाब और KP में भी CNG स्टेशंस बंद करने का इंदिया दिया गया है। गैस फील्ड्स की सालाना मरम्मत के बाइस मुल्क में बिजली के बहरान का खदशा पैदा हो गया। CNG की बंदिश का दौरानिया तवील होने का खदशा है। बंदिश की तमाम जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की बद इंतजामी है। गैस फील्ड्स की मरम्मत और LNG तरसील बंद होने से पावर प्लांट्स को गैस फराहमी मुतासिर हो गई। जरा ने बताया कि LNG की तरसील भी 1 से 1.5 हफ्ते बंद रहेगी। इस सूरत हाल में बिजली की लोड शेडिंग से कैसे बचा जाए, वज़ीर आज़म ने इजलास तलब कर लिया। इजलास में इरसा, वापडा, पावर डिवीजन, पेट्रोलियम और प्लानिंग के हुकाम शरीक होंगे। हुकूमत ने पन बिजली पैदावार बढ़ाने के लिए इरसा को डैमों से पानी का अखराज बढ़ाने का कहा था। ताहम इरसा का कहना है पन बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए पानी के ज़खायर खत्म करने का रिस्क नहीं ले सकते। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि मुल्क से बदअनवानी का खात्मा अवलीन तरजीह है। कोई सियासी दबाव खातिर में लाया है न लाएंगे। बदअनवान अनासिर से अक्टूबर 2017 से अब तक 533 अरब रुपए बरामद करके कौमी खजाने में जमा कराए हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ, जिसमें नैब कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में खिताब करते हुए चेयरमैन नैब ने कहा, इंसाफ सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुल्क से बदअनवानी का खात्मा अवलीन तरजीह है। नैब अफसरान का ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं, वो रियासत के मुलाजिम है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। नैब की तमाम इंक्वायरियां इन्वेस्टिगेशन कानून के दायरे में रहते हुए मुकम्मल की जा रही हैं। अक्टूबर 2017 में अब तक तकरीबन 533 अरब रुपए बदअनवान अनासिर से बरामद करके कौमी खजाने में जमा करवाए, जो कि एक रिकॉर्ड कामयाबी है। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि दूध, अंडे और आटे समेत खाने पीने की कई चीजों पर टैक्स खत्म किया जा रहा है, जबकि मोबाइल की 5 मिनट से ज्यादा कॉल पर 75 पैसे टैक्स नाफिज किया जा रहा है, लेकिन SMS और इंटरनेट पर कोई टैक्स नहीं होगा। कौमी असम्बली में बजट बहस पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है, हुकूमत संभाली तो करंट अकाउंट खसारे का सामना था। मजबूरी में IMF के पास गए तो उसने सख्त शराइत रखी। इसने गैस बिजली की कीमतें बढ़ाने का कहा और कहा कि पैसे तब तक नहीं देंगे जब तक शराइत नहीं मानते। IMF की शराइत से तरक्की रुक गई थी। इमरान खान ने मुश्किल हालात में दिलेरी के साथ सख्त फैसले किए। कोरोना वायरस की तीसरी लहर आई। कोरोना के दौर में दुनिया भर में नेगेटिव ग्रोथ हुई और इसकी वजह से हमारी ग्रोथ भी मनफी रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कमाल हिकमत अमली से इस वबा का मुकाबला किया और मुकम्मल लॉकडाउन के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई गई। GDP की शरह अंदाजों से बढ़कर 4% तक पहुंच गई और इमरान खान के कोरोना के हवाले से इक़दामात को दुनिया भर में सराहा गया। वज़ीर खजाना ने कहा कि बजट में 12 विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिए गए हैं। मेडिकल और प्रोविडेंट फंड्स पर लगाए टैक्स को वापस ले लिया गया। दूध, अंडे और आटे समेत खाने पीने की कई चीजों पर टैक्स खत्म कर दिए गए। फैसला किया गया कि सनतों को फरोग देना है। बहुत से सनती शोबों को टैक्स छूट दी गई। सनती शोबे को 45 अरब की मुराद दी गई। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को 100 अरब के कर्ज देंगे। पोल्ट्री पर टैक्स 10% पर ला रहे हैं। एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए रखे गए हैं। तवानाई के शोबे में कैपेसिटी पेमेंट 900 अरब रुपए है। इमरान खान ने बिजली की कीमत बढ़ाने से मना किया। वजीर आजम मुल्क में वोटिंग सिस्टम मुतारिफ करवाना चाह रहे हैं। वोटिंग सिस्टम के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं। जून 2022 तक 10 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ है। शौकत तरीन का कहना है कि मेरी गाड़ी के नाम से तमाम स्कीम मुतारिफ कराएंगे। 800 के बजाय 1000 CC गाड़ियों पर टैक्स कम कर रहे हैं। SMS और इंटरनेट पर कोई टैक्स नहीं होगा। 5 मिनट से ज्यादा कॉल पर 75 पैसे टैक्स लेंगे। कंस्ट्रक्शन पैकेज के तहत इनकम टैक्स की शरह 20% कर दी। सोने की वैल्यू एडिशन 17% होगी। सोने चांदी पर टैक्स 1 और 3% कर दिया। कॉमर्स टैक्स खत्म कर दिया गया। रजिस्टर्ड कंपनीज पर 0 टैक्स होगा और नॉन रजिस्टर्ड पर 2% टैक्स होगा। खाद, ज़रूरी आलात वगैरह पर टैक्स कम कर रहे हैं। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफोटेनमेंट में। खला तक या उसके किनारे तक जाने की दौड़ जारी है। इसी तनाजुर में अब एक और कंपनी ने एक गुब्बारे नुमा कैप्सूल बनाया है, जिसकी बदौलत आम अफराद को कुछ देर के लिए खला की सैर कराई जा सकेगी। इस खूबसूरत गुब्बारे को निज़ाम शमसी के एक सैयारे के तहत स्पेसशिप नेपच्यून के नाम पर दिया गया है। इसे अमेरिकी कंपनी स्पेसशिप प्रोस्पेक्टिव और बरतानवी कंपनी स्टूडियो प्रेस मानगुड ने डिजाइन किया है। ये किसी बहुत बड़े रिवायती गर्म गुब्बारे जैसा है, लेकिन इसमें हीलियम गैस भरी हुई है, जो हाइड्रोजन के बाद कायनात की दूसरी सबसे हल्की गैस है। बताते चलें कि हीलियम से भरे गुब्बारे माजी में तहकीक की गर्ज से खला की निचली हुदूद तक भेजे जाते रहे हैं। मुसाफिर बरदार खलाई गुब्बारे भी इस नौयत का है, लेकिन जिसामत में ये तहकीक की गर्ज से इस्तेमाल होने वाले हीलियम भरे गुब्बारों से बहुत
बहुत ज्यादा बड़ा है। गुब्बारे के नीचे एक लंबी और मजबूत तार है जिसके जरिए मुसाफिर बरदार कैप्सूल बंधा हुआ है, जिसमें 8 मुसाफिर और 1 पायलट के बैठने की गुंजाइश है। कैप्सूल के अंदर मुसाफिरों की हिफाजत और जमीन जैसा माहौल पैदा करने के लिए तकरीबन इसी दबाव पर हवा भरी गई है कि जितना जमीनी सतह पर हवा का दबाव होता है। हीलियम भरा दियो कामत गुब्बारा अपने साथ बंधे हुए मुसाफिर बरदार कैप्सूल को लेकर बुलंद हो जाता है, यहाँ तक कि इस मकाम पर पहुंच जाए जहाँ जमीनी कुर्रा हवा की बालाई हुदूद खत्म और खला की निचली हुदूद शुरू हो जाती है। ये तकरीबन 1 लाख फीट की बुलंदी बनती है। जदीद तहकीक से आरास्ता इस गोले में बैठकर खलाई सैर के ख्वाहिशमंद मुसाफिरों की पहली परवाज की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसका टिकट $1.25 लाख तकरीबन 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का होगा। लेकिन इसका एक हिसाब किताब यूं है कि अव्वलीन फ्लाइट्स महंगी है और इसके बाद की परवाजों के टिकट कम कीमत में दस्तयाब होंगे। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। कॉफी का बाकायदा इस्तेमाल जिगर के कई अमराज को रोक सकता है। माहिरीन के मुताबिक हर तरह की कॉफी इसमें मुफीद है, ख्वाह वो कैफिनेटेड हो या डीकैफिनेटेड कॉफी ही क्यों ना हो, क्योंकि दोनों सूरतों में ये जिगर के अमराज को रोकने में मुफीद साबित हो सकती है। एक तवील अरसे तक बाकायदगी से कॉफी पीने वाले 3,84,818 अफराद का मवाजना ऐसे 1,09,767 अफराद से किया गया जो कॉफी नहीं पीते थे। इन तमाम अफराद का 10 साल और 7 माह तक जायजा लिया गया, जिनमें जिगर के देरीना और खतरनाक अमराज के साथ साथ चिकनाई भरे जिगर की कैफियत और इन सब से होने वाली अमवात का जायजा लिया गया। इस ज़मन में 3600 अफराद जिगर के देरीना मरीज बने, 5,439 अफराद चर्बी भरे जिगर फैटी लीवर के शिकार हुए और 301 अफराद हलाक हो गए। ये कई अमराज को रोकती है। इनमें बाज अक़साम की कैंसर और गुर्दे के अमराज भी शामिल हैं, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि वो कौन से मुरक्कबात हैं जो जिगर के संगीन अमराज को रोकते हैं। ताहम हमारी तहकीक बताती है कि हर किस्म की कॉफ़ी इसमें मुफीद साबित हो सकती है, ख्वाह वो किसी भी कंपनी की क्यों ना हो। ओलिवर साइंसदान ने मजीद कहा, माहिरीन ने इस तवील तहकीक के बाद अंदाजा लगाया कि कॉफ़ी इंस्टेंट हो, कॉफी नेटेड हो या डीकैफिनेटेड, अगर आप पाबंदी से 2 कप रोजाना पीते हैं तो जिगर मुतासिर होने का खदशा 21% तक टल सकता है। इसी तरह फैटी लीवर के मर्ज के खतरे को टालने में 20% तक अहम किरदार अदा कर सकती है। मजमूई तौर पर कॉफी पीने वाले ख़वातीन हजरात में जिगर के अमराज से अमवात का खतरा 49% तक कम हो सकता है, जो एक बहुत खुश आइन बात है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी और सैयदा तूबा के दरमियान तलाक की खबरों की तरदीद कर दी। न्यूज़ शाया की गई कि आमिर लियाकत की मुबैना तीसरी बीवी हानिया खान की वजह से उनकी और तूबा आमिर के दरमियान तलाक हो गई है। आमिर लियाकत हुसैन ने 2 रोज कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने उस खातून को अदालत में घसीटने का कहा था जिसने दावा किया था कि वो आमिर लियाकत की मुबैना तीसरी बीवी है। ये वीडियो सामने आने के बाद मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर गर्दिश करने लगी कि आमिर लियाकत और इनकी दूसरी बीवी तूबा आमिर के दरमियान तलाक हो गई है और अब दोनों साथ नहीं रहते। शोबिस एंड न्यूज नामी ट्विटर हैंडलर से किसी भी तस्दीक के बगैर ये न्यूज शाया की गई कि आमिर लियाकत की मुबैना तीसरी बीवी हानिया खान की वजह से उनकी और तूबा आमिर के दरमियान तलाक हो गई है। इस ट्वीट पर आमिर लियाकत ने रद्द-ए-अमल देते हुए अपनी और तूबा की तलाक की तरदीद करते हुए कहा, हमारी तलाक की किसने तस्दीक की? मैं ये गलत खबर शाया करने पर इन्हें अदालती नोटिस भेजूंगा। बाद अज़ान ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दूसरी जानिब जब से हानिया खान नामी खातून ने आमिर लियाकत हुसैन की मुबैना तीसरी बीवी होने का दावा किया है, सैयदा तूबा ने इस हवाले से मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। यहाँ तक कि अपनी और आमिर लियाकत की तलाक की खबर वायरल होने के बाद भी उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। कोरोना ने भारत से T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी छीन ली। इंटरनेशनल क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक ICC T20 वर्ल्ड कप भारत के बजाय UAE में रवा साल अक्टूबर में होगा। फाइनल नवंबर में शेड्यूल है। मेगा इवेंट के मैचेस दुबई और अबुधाबी में खेले जाएंगे। भारत में कोरोना ने तबाही मचा दी। T20 वर्ल्ड कप भी छिन गया। T20 वर्ल्ड कप भारत के बजाय मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। इवेंट 17 अक्टूबर से शुरू होगा और फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप प्लान के मुताबिक टीमों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया। पहले मरहले में मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान में खेले जाएंगे। इस मरहले के दौरान 12 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी। जिन 8 टीमों के दरमियान मैचेस होंगे उनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, आयरलैंड, हॉलैंड, स्कॉटलैंड, नामीबिया, ओमान, पापुआ न्यू गिनी शामिल हैं।
इनमें से 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी। चारों टीमों के क्वालिफाई करने के बाद अगले मरहले में 12 टीमें 30 मैचेस खेलेंगी। ये मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई, अबू धाबी और शारजाह में होंगे। इसके बाद 3 प्ले ऑफ गेम्स होंगे, जबकि 2 सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे, जिसके बाद फाइनल मैच होगा। क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक ICC T20 वर्ल्ड कप का मेजबान भारत ही होगा। ताहम भारत में कोरोना वायरस की बदतर सूरत हाल की वजह से इवेंट का वेन्यू मुत्तहिदा अरब अमारात किया गया है। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। खैबर पख्तूनख्वा, बलाई वस्ती पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। इतवार के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों का मौसम बलाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 47, दादू 45, शहीद बेनजीराबाद 44, भावलनगर, जैकबाबाद और तुर्बत में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।